Jai Hind student, welcome to biology class. Now student, today in this lecture we are going to study the last cycle of this chapter, photosynthesis in higher plants, and that is photorespiration. This photorespiration is also known as C2 cycle. Okay, and this is very important as this cycle it inhibits the C3 cycle. जो C3 cycle है that is Kelvin cycle, वो इसको stop कर देती है. And how it does that we are going to study. Now first let's understand what is photorespiration. Now photo means होता है light, that means light dependent, and respiration means the intake of oxygen. Okay, so the light dependent uptake of oxygen and the release of carbon dioxide in C3 photosynthetic cell called photorespiration. Now what happened during the Kelvin cycle? As you all know, in Kelvin cycle the substrate, that is ribulose biphosphate, in the presence of Ribisco enzyme. Now Ribisco enzyme, that I have already told you, it has affinity for oxygen also and for carbon dioxide also. Okay, so if the concentration of oxygen is more in the cell, then this Ribisco will act as Ribisco will follow the oxygenation path, and if the carbon dioxide is more, then it will do the carboxylation, and it will run the Kelvin cycle. Now what happened when the oxygen concentration is more in the cell? Then what happened, this Ribisco enzyme and this Ribisco enzyme changes the substrate, that is ribulose biphosphate, into a C2 compound. एक अलग compound बन जाता है जिसको हम बोलते हैं phosphoglycolate या phosphoglycolic acid. Okay, so this C2 compound is formed in when the oxygen concentration is more. So this process is termed as a wasteful process. Okay, photorespiration जो है, it is a wasteful process. Why? Because the first thing is that it stops the normal Kelvin cycle which is forming the food. ठीक है, जो कि शुगर बना रही थी. How? By forming another stable product, that is phosphoglycolate. Okay, instead of PGA, that is phosphoglyceric acid. Okay, so it hampers the it stops, or you can say it inhibits the Kelvin cycle. That is the first you can say that is the first drawback of this cycle. And the second is that the assimilatory power, जो कि assimilatory power NADP, H and ATP जो कि हमने light reaction में बनाई थी in order to run the dark reaction and to form the food. So ये जो हमने बनाई थी assimilatory power, वो भी इसको वो consume कर लेता है without any useful product. ठीक है, that's why this photorespiration is termed as a wasteful process. Now this photorespiration, it occurs in mitochondria, peroxisomes and क्लोरोप्लास्ट. ये 3 सेल ऑर्गेनल्स में ये पूरा रिएक्शन कंप्लीट होता है. प्लीज़ रिमेंबर इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दिस इज़ जस्ट अ कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होगा तो रिबिस्को जो है वो बनाएगा phosphoglyceric acid and will continue the Kelvin cycle. Okay, that is the useful one. But in the presence of oxygen, low carbon dioxide concentration and high oxygen concentration, so what will happen? Then Ribisco will act. Ribisco जो है यहाँ पे oxygenation करेगा and it will form phosphoglycolic acid या phosphoglycolate जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, और ये इसी के नाम पे हमने फोटोरेस्पिरेशन को C2 साइकिल भी कहा जाता है. ये जो आप देख रहे हो इसके बारे में भी मैं बताऊंगी, क्योंकि फोटोरेस्पिरेशन में क्या होता है कि एंड में जो है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो जो है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बनता है.
ओके, सो कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन 75% जो है कार्बन जो कि लॉस्ट होती है ड्यूरिंग द ऑक्सीजनेशन दैट इज़ रिकवर्ड। ओके, वो रिकवर हो जाती है, मीन्स 25% ही कार्बन जो है वो वेस्ट हो जाती है, रिलीज हो जाती है इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कब होती है वो भी हम पढ़ेंगे। ओके, सो यहाँ पे जो है ये शॉर्ट में बताया गया, अभी मैं आपको पूरी साइकिल एक्सप्लेन करूँगी कि दो मॉलिक्यूल्स आपके ग्लाइसिन के फॉर्म करते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ सीरीन। सो अब इस प्रोसेस में क्या होता है, एक कार्बन का लॉस होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो 4 कार्बन है और यहाँ पे आप देख रहे हो 3 कार्बन है, तो एक कार्बन का लॉस होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। ओके, सो 25% कार्बन यहाँ पे लॉस्ट हो जाता है और 75% जो है कार्बन हम रिकवर कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दैट सिंपल फॉर्म में आप समझ सकते हो। ये रुबिस्को है, ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ये ग्लाइकोलिक एसिड इसने बना दिया और फाइनली जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और फिर से आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो रीजनरेट हो जाता है। ओके, सो दिस इज़ हाउ ये जो है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये रीजनरेट हो जाता है और दिस इज़ हाउ फोटो रेस्पिरेशन रन। ये तो एक शॉर्ट फॉर्म में दिया है, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं क्योंकि ये वही स्टेप्स हैं जो हम समझने जा रहे हैं। नाउ दिस यू कैन सी द डायग्राम, यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पे तीनों सेल ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीसोम्स एंड क्लोरोप्लास्ट। नाउ व्हाट हैपेंड, नाउ दिस रिबलोस बाईफॉस्फेट, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, आपका ये क्लोरोप्लास्ट में रिबलोस जो है बाईफॉस्फेट सबस्ट्रेट का फिक्सेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम एंड व्हाट इट फॉर्म्स, इट फॉर्म्स phosphoglycolate that is a 2C compound, 2 कार्बन कंपाउंड। अब ये 2 कार्बन कंपाउंड है। ओके, और एंड में आपको जो है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी रीजनरेट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 और 3 5 हो गए आपके कार्बन कंपाउंड्स। लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए, अभी हम इसको भूल जाते हैं। ओके, बस आपको ये समझना है कि रिबलोस जो है वो रिबलोस बाईफॉस्फेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो रुबिस्को एंजाइम इससे क्या बना देगा, फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। नाउ अब ये फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड किस में चेंज हो जाएगा, ग्लाइकोलेट में, दैट इज़ अ 2 कार्बन कंपाउंड, और ये जो फॉस्फो ग्रुप है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ओके, नाउ दिस ग्लाइकोलेट इट इज़ नाउ ट्रांसपोर्टेड टू पेरोक्सीसोम्स। अब पेरोक्सीसोम में ट्रांसपोर्ट होगा और उसके बाद जो है ये चेंज हो जाएगा ग्लाइकोक्सिलेट में, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस है ये रिलीज़ करेगा। और फाइनली जो है इसमें क्या होगा, एमिनेशन होगा, एमिनो ग्रुप आके जुड़ेगा और ये क्या बना देगा, ग्लाइसिन। इसके बाद ये जो ग्लाइकोलेट है वो चेंज हो जाएगा ग्लाइसिन में, अमीनो ग्रुप यहाँ आके जुड़ जाएगा। अब ये जो ग्लाइसिन है इसके 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आप अब जो है ये अब बाकी ये अब माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा और 2 मॉलिक्यूल्स ग्लाइसिन के मीन्स 4 कार्बन हो गए, 2 2 4, ये जो है मिल के ये बनाएंगे एक और आपका अमीनो एसिड जिसको हम बोलते हैं सीरीन। ओके, नाउ ये और साथ में यहाँ पे आप देख रहे हो ये 3 कार्बन कंपाउंड है और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 4, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो गया जो कि रिलीज़ हो गई। अब ये सीरीन जो है ये फिर से पेरोक्सीसोम में ट्रांसपोर्ट होगा इसके बाद इसका डीएमिनेशन होगा, मतलब यहाँ से अमीनो ग्रुप क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा अमीनो ग्रुप, और हमारे पास क्या बचेगा, ग्लिसरेट। नाउ दिस ग्लिसरेट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू बैक क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट में ट्रांसपोर्ट होके आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को रीजनरेट कर देगा और केल्विन साइकिल को रन करेगा। सो दिस इज़ हाउ फोटो रेस्पिरेशन अकर्स। ओके, ये वही पूरा इसका थ्योरी है, मैकेनिज्म दिया हुआ है। हाई टेम्परेचर पे रिबलोस बाईफॉस्फेट जो है that the enzyme Ribisco has the great affinity for oxygen than for carbon dioxide,
So it combines with oxygen and RUBP to form फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड फाइनल PGA जो कि बाद में बनेगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया. ये फॉस्फोग्लाइकोलेट इट फॉर्म फॉस्फोरिक एसिड एंड ग्लाइकोलेट इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलेज एंजाइम, और ये पास हो जाता है पेरोक्सीसोम में. पेरोक्सीसोम में ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा ग्लाइकोलेट और बनाएगा ग्लायोक्सिलेट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड. फिर ये जो है ये ग्लायोक्सिलेट, इसका एमिनेशन होगा, इसमें अमीनो ग्रुप जुड़ेगा और ग्लाइसिन जो है फाइनली जो है और ग्लाइसिन बनाएगा. फिर ग्लाइसिन में का डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा, डीएमिनेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, जिससे सीरीन बनेगा. सीरीन का डीएमिनेशन होगा, अमीनो ग्रुप रिमूव होगा एंड फाइनली phosphoglyceric acid is formed which enters into the chloroplast and take part in the C3 cycle. So this is how the cycle runs and it is completed. So this is all about the photorespiration, that is your C2 cycle. Hope you all have understood. Thank you everybody.